Hello dear students, once again Anupsa here with Gurmant Logics on the behalf of Divine Education Institute. And today's session will be on the networking devices. The networking devices which we use to create networks, to maintain networks. There will be different kinds of devices in today's session, in which hub, bridge, router, gateway, bridge and repeater will be the part of the session as you are looking here. So first one is hub. What is hub? Hub is actually a common networking device which is used to connect to simple LAN or create a LAN. A hub is the most basic networking device, as you know that all, that connects multiple computers also in a company, in an office or in a building, and it can connect other hubs also with it to create a large or multiple network. As you are looking here the images, they are given two images in which one you are looking about nodes. These holes you are looking here, these are nodes, and nodes are the point where we connect cables. And in the second image you are looking these cables, these are Ethernet cable. Mostly Ethernet cables are used for connecting network or to create a LAN. Next one device is switch, that is the major or some major role which have some major role of hub. In which way hub works? In same way switch works, but switch is some large device and that can create some large network, because number of ports in switch are more than in compare of a hub, and switch are used to connect more or large number of computer systems within a LAN. With image you are looking, I am giving some clue here or some important points that about is some in early time some switch, or you can say in previous time, that was the starting of the switches. Each switch has a special node that is called trump node. What was a trump node? Trump node was actually to directly connect one switch to another switch. It means कि हम एक स्विच से दूसरे स्विच को अगर कनेक्ट करना है तो मुझे ट्रम्प नोड का ही यूज़ करना है, मैं अदर पैरेलली या डायरेक्टली किसी और नोड का यूज़ नहीं कर सकता. जैसा कि हब में नोड्स से 5 नोड्स होते हैं, 7 नोड्स होते हैं, 50 नोड्स होते हैं. हब और स्विच में डिफरेंस क्या है? हब में आप किसी भी दूसरे हब को किसी भी नोड के अंदर कनेक्ट करके हम दो हब को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, बट किसी भी स्विच को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक स्पेशल नोड होता था पहले, जिसको हम बोलते थे ट्रम्प नोड. ट्रम्प नोड जो कि अब शायद नहीं होता है, क्योंकि अब जो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया है, इन द मॉडर्न टाइम और द न्यू स्विच doesn't have such kind of function that is a trump node. In present time switch also works as hub works. It means if we want to connect two switches together which each other, then you can also do the same as we can with a hub. It means we can connect directly any switch to any switch with any node. Okay. और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये कॉर्नर जो है ये है आपका डायरेक्टली किसी हम लैन को कनेक्ट करने के लिए, किसी इंटरनेट कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए, और जो ये पॉइंट है ये स्विच को कनेक्ट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए.
ये बाकी यहाँ जो देख रहे हैं आप ये सभी नोड्स हैं जहाँ से हम सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। ये कम नोड से अभी स्विच है, इससे ज़्यादा का भी होता है स्विच अभी। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा पॉइंट है स्विच के बाद हमारा आता है, हब हो गया आपका, स्विच हो गया, आते हैं रूटर की तरफ। देखिए यहाँ स्विच के बारे में और ज़्यादा बताया, मैंने जैसे कहा था अभी आपको स्विच के बारे में कि एक स्विच में ज़्यादा नोड भी हो सकते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, नोड्स की जो नंबर है वो ज़्यादा हैं इन कंपेयर ऑफ जो भी पहले में पिक्चर देखी थी। और जो यहाँ देख रहे हैं आप, हम किसी राउटर को कनेक्ट करना है तो हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। हम स्विच को राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें एक स्विच से ज़्यादा आपस में कनेक्ट करने हों तो मैं राउटर की हेल्प ले सकता हूँ, अगर मुझे इंटरनेट का यूज़ करना है उसके अंदर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इससे अलग। तो इसके बाद जो मैंने बताया था वो था आपका रूटर ही था इसके बाद में एक्चुअली। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो हमारा रूटर है। तो रूटर क्या है एक्चुअली? रूटर एक ऐसी डिवाइस है नेटवर्किंग की जो कि पैकेट्स को आगे ट्रांसफॉर्म करती है किसी सिस्टम के लिए या किसी नेटवर्क के लिए। और रूटर में एक स्पेशलिटी जो है कि रूटर जो सेम टाइप, जैसे आपने अभी टॉपोलॉजी के बारे में आपको मैंने बताया था पहले प्रीवियस क्लास के अंदर, प्रीवियस सेशन के अंदर, हमारे डिफरेंट टाइप की टॉपोलॉजीज हैं, जिसमें हमारी बस टॉपोलॉजी है, मैश टॉपोलॉजी है, रिंग टॉपोलॉजी है, स्टार टॉपोलॉजी है, अदर टॉपोलॉजीज हैं। तो जब सेम टॉपोलॉजी के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना हो, मतलब ये क्या कि हम एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करें तो हम वहाँ रूटर का यूज़ कर सकते हैं। फिर देखो क्या है, रूटर में अलग अलग फंक्शन है, कुछ इसका अलग फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है रूटर में कि हम इससे इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई वाले हमारे रूटर भी होते हैं, बिना वाईफाई वाले रूटर भी होते हैं। वाईफाई रूटर की हेल्प से क्या हो सकता है कि हम इंटरनेट के जो कनेक्शन है वो एक बिल्डिंग के अंदर यूज़ करा सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर हॉल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वहाँ बैठे जितने भी लैपटॉप सिस्टम्स हैं या मोबाइल से, वो सभी रूटर से कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा फंक्शन क्या होता है कि रूटर में ये भी है कि हमें अगर एक से ज़्यादा ब्रिज को आपस में कनेक्ट करना हो या दो लैन को कनेक्ट करना हो तो हम रूटर का यूज़ कर सकते हैं, जिस कंडीशन में क्या होगा कि उनको नेट की फैसिलिटी भी उसमें प्रोवाइड होगी। कुछ और आगे जो फंक्शन में समझाता हूँ उसकी हेल्प से आपको। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए एक इमेज है ये ऊपर जो दी हुई है, ठीक है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये दिए हुए पॉइंट्स जहाँ से हम सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं या हम एक अदर नेटवर्क को कनेक्ट करा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे इसको केबल कनेक्ट कर रहा है किसी नेटवर्क को, ठीक है। ये इसकी मेन केबल है, यहाँ से हम इसमें नेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। ये इसको स्टार्ट करने का पॉइंट है। तो रूटर के बारे में मैंने बताया जैसे आपको, अब इसको कंपेयर करें गेटवे से। पहला हम समझ लें गेटवे होता क्या है। तो गेटवे को समझने के लिए टॉपिक गेटवे की तरफ चलते हैं आगे। गेटवे मैं पहले बता दूं उसके बारे में, आपको डिस्क्रिप्शन आगे बाद में की हुई है, समझा दूँ थोड़ा इस फिगर को। अभी हमने पहले फिगर देखा था, उसमें फिगर में क्या था, सेम कंडीशन के अंदर पहले यहाँ इस फिगर में इस जगह पर पहले वहाँ पर रूटर था, अब यहाँ हमने यूज़ किया गेटवे। रूटर और गेटवे में डिफरेंस क्या है? देखिए इस तरह की नेटवर्किंग डिवाइस, ये सेम फिगर 2-3 बार रिपीट होगी, डिपेंड करता है कि हम किसको कनेक्ट कर रहे हैं। What types of network and which system are going to be connected, which system we are connecting with this device. It may be a router, it may be also a router. And if we want to connect to different types of network, suppose this router connects ring topologies network and this router connects star topologies of network. This connects ring and this connects star topologies, all the networks. And if we want to connect this ring and this star topology network, then we need a gateway, then we need a gateway. समझ में आ गया? तो गेटवे काम क्या है? ये एक एंट्रेंस प्रोवाइड कराता है कि अगर किसी अदर नेटवर्क को किसी अदर नेटवर्क से ज्वाइन होना है, जैसे कि रिंग टॉपोलॉजी अलग नेटवर्क होते हैं, स्टार टॉपोलॉजी अलग नेटवर्क होते हैं, अगर इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं एक तो डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क से एंट्रेंस से गेट प्रोवाइड कराता है, इसको हम बोलते हैं गेटवे, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके जो हमने डिस्क्रिप्शंस में दी हुई है उसकी तरफ चलते हैं। क्या है वो? अ गेटवे इज बेसिकली डिवाइस और ए हार्डवेयर विच एक्ट्स लाइक ए गेट, जैसा आपको मैंने बताया था, अमॉन्ग द नेटवर्क्स। Thus it can also be defined as a node which acts as an entrance for the nodes in the network. It is also responsible for enabling the traffic flow within the network. Gateway uses more than one protocol for communication, thus
its activities are much more complex than switch or a router, because router and switch both works on same network or same topology, but gateway provides entrance. Hence, the function or the working system of gateway gets some sophisticated and some terrific. Next one point is बात करते से पहले डिफरेंस के दोनों के बीच रूटर और गेटवे में कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, ये हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन राइज हो जाता है बार बार कि आखिर रूटर में और गेटवे में डिफरेंस क्या है। अगर जो मैंने आपको सारे पॉइंट तो क्लियर किए, उसके बिहाफ हम यहाँ पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है रूटर के बारे में, तो रूटर क्या है हमारा, इट इज़ अ हार्डवेयर इन विच is responsible for receiving, analyzing, forwarding the data packets to other same network, जबकि गेटवे काम क्या है, गेटवे एक अलग नेटवर्क की तरफ बढ़ता है। इट इज़ अ डिवाइस दैट इज यूज फॉर द कम्युनिकेटिंग अमंग द नेटवर्क विच हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स मीन विच हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोपोलॉजीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज विल फॉलो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट सपोर्ट द डायनेमिक रूटिंग। स्पीड जो है वो रूटर की गेटवे कंपेयर में ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज कि रूटर सेम टोपोलॉजी वर्क कर रहा है, इसके बाद वर्क फंक्शन कम है, जबकि गेटवे के पास वर्किंग फंक्शन ज़्यादा होने की वजह से सोफिस्टिकेटेड वर्क हो जाता है, जिसके साथ की स्पीड उतनी फास्ट नहीं हो सकती जितनी कि एक रूटर की होती है। आगे बढ़ते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ ए रूटर इज रूटिंग द ट्रैफिक फ्रॉम वन नेटवर्क टू द अदर। तो राउटर का या रूटर का जो मेन फंक्शन क्या है, रूटिंग, एक ट्रैफिक को दूसरे ट्रैफिक की तरफ या रूट करना है, इसका रूट प्रोवाइड कराना। क्यों? क्योंकि हम सेम टोपोलॉजी के नेटवर्क आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनको रूट प्रोवाइड करा रहा है कि हाँ ठीक है, इधर से आइए, यहाँ सब कनेक्ट हो सकते हैं। जबकि मेन फंक्शन गेटवे का सिर्फ नेटवर्क को कनेक्शन प्रोवाइड कराना नहीं है, आपस में कनेक्ट जोन करना नहीं है। ये क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ अ गेटवे इज टू ट्रांसलेट वन प्रोटोकॉल टू द अदर। एक्चुअली गेटवे का जो वर्क है थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, जैसे पहले कहा था मैंने, ये एक प्रोटोकॉल लेयर से वर्क करता है, जिसमें कि 7 लेयर्स की सेवन प्रोटोकॉल का लेयर होता है, या ये कह लीजिए ये एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल वर्क करता है, जिसमें 7 लेयर्स होती हैं। तो उन सभी 7 लेयर्स में से ये ज़्यादातर पे वर्क करता है, जो कि जो रूटर है वो सीधे नेटवर्क या ट्रांसफॉर्म लेवल पर वर्क करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करता है। जबकि गेटवे का फंक्शन क्या है, गेटवे डाटा लिंक्स लेयर से लेकर के एप्लीकेशन और सेशन लेयर तक वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं, इसके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें थोड़े से। ए रूटर ऑपरेट्स ऑल द लेयर्स, जैसा मैंने अभी प्रीवियस पॉइंट पे वो क्लियर किया था कि रूटर ऑपरेट्स ऑल द लेयर्स अप टू द लेयर 3 ऑफ द OSI मॉडल। तो अप टू द 3 जो मॉडल है, इसमें कौन कौन से बता दूँ मैं लेयर आते हैं। सबसे पहला लेयर आता है उसमें फिजिकल लेयर, सबसे पहला आता है फिजिकल लेयर। दूसरा इसमें आता है डाटा लिंक लेयर, और नेक्स्ट इसमें आता है नेटवर्क लेयर। तो ये इन तीनों को फॉलो करता है, क्लियर। जबकि गेटवे का जो फंक्शन है वो कहाँ तक वर्क करता है, वो सेकंड से लेके 7 लेयर तक वर्क करता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, डाटा लिंक लेयर से। आगे इसमें जैसे नेटवर्क लेयर, अभी इसमें देखा आपने नेटवर्क लेयर। इसके बाद इसमें आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आपका आता है सेशन लेयर। फिर आपका आता है प्रेजेंटेशन लेयर, और फिर आपका आता है एप्लीकेशन लेयर। तो गेटवे का काम क्या है, गेटवे सेकंड लेयर से लेके 7 लेयर्स तक वर्क करता है, जबकि रूटर जो है वो सिर्फ स्टार्टिंग के या नीचे से बात करें, हम सिर्फ नीचे से पूरी तरफ जाए तो सबसे नीचे आपका था फिजिकल लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर। तो ये इन्हीं 3 लेयर्स पे वर्क करता है। आई होप ये पॉइंट अब क्लियर हो गया कि कौन कौन से लेयर होते हैं, क्या है। आगे चलते हैं इसमें।
इट इज होस्टेड ऑन ओनली द डेडिकेटेड एप्लीकेशंस। जबकि आपका जो गेटवे है, इट इज होस्टेड ऑन डेडिकेटेड एप्लीकेशन, फिजिकल सर्वर और द वर्चुअल एप्लीकेशंस आल्सो। होस्टेड ओनली ऑन द, देखो डेडिकेटेड एप्लीकेशन मतलब ये कि जो एप्लीकेशंस बनाई गई हैं सिर्फ ये उन्हीं के लिए वर्क करेगा। एप्लीकेशन यहाँ मतलब है सॉफ्टवेयर से, तो ये सिर्फ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर ही वर्क करता है रूटर आपका। जबकि गेटवे क्या है, गेटवे फिजिकल जो सर्वर पर भी यूज़ किया जाता है, सर्वर को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक वर्चुअल एप्लीकेशंस भी बनाई जाती हैं इसकी हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट इज द एडिशनल फीचर प्रोवाइडेड बाय रूटर आर वायरलेस नेटवर्किंग, स्टैटिक रूटिंग, नेट, DHCP सर्वर एटसेट्रा। जैसे मैंने बताया कि हम इसके हेल्प से एक लोकल वे में नेटवर्क फैसिलिटी इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। वायरलेस नेटवर्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड वहाँ की जा सकती है, बिना वायरस के यूज़ के नेट चला जा सकता है। जबकि एडिशनल फीचर की हम बात करें गेटवे में, तो ये क्या है, नेटवर्क एक्सेस करता है, उसको कंट्रोल करना, उसके प्रोटोकॉल को कन्विंस करना, कि इस तरह कन्विंस करना कि वो इजीली उसमें किसी भी नेटवर्क के साथ मर्ज कर पाए। ठीक, तो यहाँ आई होप कि ये जितने भी डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा था ब्रिज। अब ब्रिज की मैं बात करूं तो जैसे ब्रिज के बारे में आगे पढ़ने से पहले एक थोड़ा लॉजिक का वो समझाना चाहूँगा मैं। व्हाट इज अ ब्रिज इन सिंपल वे एट वी नो अबाउट द ब्रिज इन अदर पॉइंट ऑफ द नेटवर्किंग। ब्रिज को हम बोलते हैं पुल। पुल का काम क्या होता है? पुल का काम होता है कि हम एक छोर से दूसरे छोर को कनेक्ट कर सकते हैं उस जगह पर जहाँ हम इजीली चल नहीं सकते। अब चाहे वो रिवर हो, चाहे वो कोई माउंटेन की हिल्स हो, या बीच में कोई वैली हो, या रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, तो हम वन साइड से दूसरे साइड को जाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रिज का यूज़ करते हैं। तो ठीक ऐसे ही नेटवर्क में ब्रिज का यूज़ है। ब्रिज का यूज़ क्या है कि बीच के ट्रैफिक को, बीच में जो हमारे बैरियर्स हैं उसको अवॉइड करने के लिए हम ब्रिज का यूज़ करते हैं। सो ब्रिज इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंटरकनेक्शन विद अदर ब्रिज ऑल्सो। ये कब करते हैं हम? जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए। अब जैसे बात की जाए कि अगर एक जो ब्रिज के नीचे हम क्या पिलर्स को यूज़ करते हैं, जो कि इसको बेस प्रोवाइड कराता है, अदरवाइज क्या होगा, ब्रिज कमज़ोर वीक हो जाएगा। अगर इस तरह का बेस तो हम प्रोवाइड नहीं करा सकते नेटवर्किंग के अंदर, क्योंकि वहाँ पर कोई हमारा फिजिकल तो कुछ है नहीं। तो क्या है, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए बीच में इनके, तो एक ब्रिज दूसरे ब्रिज को आपस में कनेक्ट करता है, और ये ब्रिज जो है अपने उस जोन के अंदर के नेटवर्क को मेंटेन करते हैं। ठीक, तो बीच के ट्रैफिक से बचने के लिए दो ब्रिज आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। ब्रिज डिवाइस वर्क्स एज द डाटा लिंक लेयर ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जो कि मैंने भी आपको समझाया था पहले भी, कनेक्टिंग टू डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर एंड प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन बिटवीन देम। अभी पिछली इमेज में आपने क्या देखा था, यहाँ पर था गेटवे। अब यहाँ पर है ब्रिज, जो कि दो सर्वर को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ये दो हब भी हो सकते हैं, दो हब को आपस में कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का यूज़ हो रहा है। ठीक है, और यही जब डिस्टेंस बढ़ जाए, मान लो यहाँ इंडिया हो जाए और यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो जाए, और यहाँ के पूरे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का यूज़ हुआ है, और यहाँ भी पूरे नेटवर्क को फॉलो कर रहा है वो, ये नेटवर्क है, पूरे नेटवर्क को कौन मेंटेन कर रहा है, ये ब्रिज मेंटेन कर रहा है। अगर कोई अब इंफॉर्मेशन इस नेटवर्क से या यहाँ के किसी भी सिस्टम से यहाँ भेज जाए तो कैसे जाएगी, इस जगह पर वो जाएगी ब्रिज के यहाँ से। ब्रिज पूरे सिस्टम को नेटवर्क मेंटेन कर रहा है। अब ब्रिज क्या करेगा, सीधे ही यहाँ से इस ब्रिज को मैसेज सेंड करेगा, फिर ये ब्रिज मेंटेन करेगा उस चीज़ को, मुझे वो कहाँ भेजना है, या उसका सोर्स पॉइंट कहाँ से आया और डेस्टिनेशन पॉइंट किस जगह पर मुझे मैसेज ट्रांसफ़र करना है। समझ में आया? ब्रिज का ये काम भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें टॉपिक में। तो ब्रिज के में और बात करने से यहाँ पे हब भी दिया हुआ है कि हम लोकल एरियाज़ को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं ब्रिज की हेल्प से। जैसे एक हब सिस्टम है, एक ये पूरा नेटवर्क है, और हम किसी अदर ट्रैफिक से बचने के लिए, मान लीजिए मेरे पास जो हब है वो फुल्ली ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, जो उसके नोड्स हैं, अब कोई फ्री नोड नहीं बचा है जहाँ से मैं एक हब से दूसरे हब को वापस कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं
ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करूँगा, ब्रिज का यूज़ कर सकता हूँ। ब्रिज का सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि ये किसी भी तरह के ट्रैफिक को आपस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होने देगा, ये ट्रैफिक से उनको फ्री रखेगा। और ये नेटवर्क जो है, अगर मैं इन कंपेयर बात करूँ, या हम अगर दो हब को आपस में कनेक्ट कर देते तो ट्रैफिक की सिचुएशन बनी रह सकती थी, कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता था। बट ब्रिज के हेल्प होने से अब ये इसकी नीड नहीं है। अब ब्रिज वर्क करेगा तो ये बेटर वर्क करेगा, अदरवाइज ब्रिज की कोई यहाँ ज़रूरत नहीं थी। ब्रिज की नीड क्या है, क्योंकि जो बीच में इनका जो डिस्टर्बेंस है, जो डाटा ट्रैफिक है, वो बहुत ज़्यादा क्रिएट ना हो। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, आफ्टर ब्रिज कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज repeater. I think it should be repeater. Yes, this is repeater. What is repeater? Repeater क्या है? Actually, repeater works on the basis of artificial intelligence. Artificial intelligence, why? Because there is no physical thing or the set protocols that accessed through repeater. Repeater only collects the weak signals from any network and then transmit it with amplifier mode and send forward for the next destination. It means in a large or a huge network there may be a number of repeaters. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बहुत ही अगर लॉन्ग, मान लो 1000 किलोमीटर की डेस्टिनेशन कवर करनी हो, पैदल जा सकते हैं? नहीं, बाई फुट नहीं जा सकते। चलो बाई फुट तो दूर की बात है, मैं व्हीकल की बात करूं तो बीच बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, अपने व्हीकल के अंदर फ्यूल को लेना पड़ेगा, फ्यूल फुल कराना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे रिपीटर क्या काम करता है, बीच में जो डाटा और जो सिग्नल वीक होता है कलेक्ट करता है, उसको दोबारा से उसको रीजनरेट करता है, एम्पलीफाई करता है, उसमें जान बढ़ता है, उसको एनर्जी देता है, फिर आगे ट्रांसफ़र करता है। अगर रिपीटर नहीं होंगे तो क्या हो सकता है, डाटा के लॉस होने की कंडीशंस क्रिएट हो सकती है, डाटा खत्म हो सकता है, लॉस हो सकता है, हैक किया जा सकता है। ठीक, नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ डिस्क्रिप्शन, अ रिपीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव ए सिग्नल एंड ट्रांसमिट इट। Repeaters are used to extend transmission so that the signal can cover longer distance or be received on the other side of an obstruction that is called destination point। जैसा कि मैंने भी बताया कि सिग्नल वीक नहीं हो और अपने लॉन्गर डिस्टेंस को कवर कर पाए। ठीक है, आगे मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा रिपीटर के बारे में और भी कुछ ज़्यादा आपको। तो यहाँ बात करते हैं इस फिगर के ऊपर, अभी जो हम देखने वाले हैं। अभी देखिए यहाँ पर, अभी बीच में दिया हुआ है रिपीटर, ये अलग अलग नेटवर्क दिए हुए हैं, एक वायरलेस राउटर भी दिया हुआ है, ये सिस्टम से जो सभी वायरलेस राउटर से कनेक्ट हुए हैं, जो कि सभी सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है, सभी ये रन कर रहे हैं। अगर इनका डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या ये कंप्यूटर इसके तरफ से वायरलेस सिग्नल सेंड हो रहे हैं इस कंप्यूटर में, वो कैच कर पाएगा? नहीं कर सकता। तो वायरलेस रिपीटर क्या काम कर रहा है, देखो मैंने ये फिगर जो ली है, थोड़ा सा एग्जांपल क्लिक करें। ये वायरलेस रिपीटर यहाँ पर क्या काम कर रहा है, इस जगह पर यहाँ से जो डाटा इसने कलेक्ट किया, जो ज़्यादा मिल रहा है इसको, उसको आगे रीट्रांसमिट कर रहा है, जिससे कि आगे जो डिवाइस है, इस जगह जो डिवाइस है वो प्रॉपरली इसको कनेक्ट कर पाए, कलेक्ट कर पाए। अदरवाइज़ क्या होगा, डाटा यहाँ तक पहुँचने से पहले ही बीच में वीक हो जाएगा और यहाँ तक आते आते तो वो ख़त्म हो जाएगा, और नेटवर्क वो जो ये सिस्टम है वो एक्सेस नहीं कर सकता, या उसको नेटवर्क सिग्नल नहीं मिल पाएगा। क्लियर? तो ये वर्क था यहाँ पर रिपीटर का। आई होप कि सारी चीज़ें आपको वन बाय वन सब क्लियर हो गई हों, और अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे सीधे क्वेश्चन कर सकता है। अगर मैं इस फिगर पे आपको थोड़ा समझाना चाहूँ रिपीटर के बारे में, तो जैसा आपने देखें ये जो वर्क है रिपीटर का ही करता है। जो बीच में हमारे टावर लगे हुए होते हैं, ये हमको एक रिपीटर वाली फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। माने यही एक सेम टावर, जैसे आपके सिटी में कोई टावर लगा हुआ है, अब मेन टावर से तो आपके मोबाइल को सिग्नल मिल नहीं रहा है, सिग्नल कहाँ से मिल रहा है? इस टावर से जो आपके सिटी में लगा हुआ है। सिटी बहुत बड़ी है तो वहाँ पे नंबर इस टावर के ज़्यादा हो सकते हैं, इट कैन बी मोर इन नंबर्स, जिससे कि सभी मोबाइल सिस्टम्स को या सभी कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपरली वो सिग्नल मिल पाए। अब चाहे BSNL का हो,
ये इंटरनेट का तो होता ही है, टेलीकम्युनिकेशन का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारे जो एयरटेल है, आइडिया है, और हमारा जो वोडाफोन चलाते हैं या हम जियो नेटवर्क चला रहे हैं, किसी भी नेटवर्क हम सिग्नल सिम यूज़ कर रहे हैं, तो रिपीटर क्या है, ये सब रिपीटर हैं जो कि हमको हमारे मोबाइल तक सिग्नल पहुंचाने के लिए बीच बीच में ये सिटीज़ में लगाए जाते हैं। ठीक है, जिससे कि जो मेन हेडक्वार्टर जो सिग्नल निकल रहा है, जो जो सबसे मेन नेटवर्क है वहाँ से सिग्नल निकल रहा है, उस सिग्नल को आगे तक या सोर्स से जो सिग्नल निकल रहा है हर एक यूज़र तक उस सिग्नल को पहुँचाया जा सके। तो आज का सेशन मेरा इस रिपीटर पर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ खत्म समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद भी कोई दिक्कत है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सो टुडेज थैंक यू, हैव अ गुड डे।